سب سے بڑی جماعت ہیں اور انشاءاللہ جب سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں تو سینٹ میں بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کن کن مسائل کا سامنا ہے. اس پارٹی کا جو اس وقت جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ٹریجری سائٹ پہ جو سینیٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے زبانی اور ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ جو واقعہ ہمارے پارٹی کے اسپوکس پرسن رؤوف حسن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس میں انہوں نے کوئی زبانی پروٹیسٹ بھی نہیں کیا. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بات حق اور ناحق کی نہیں ہو رہی، بات سچ اور جھوٹ کی نہیں ہو رہی، بات انصاف یا انصافی کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت جس کے پاس طاقت ہے اسی کی بات، اسی کا سکہ رائج الوقت ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ اس ہاؤس میں جو سینیٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں آیا وہ سینے میں دل نہیں رکھتے؟ آیا ان کی کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے؟ آیا ان کا کوئی ایک سیاسی میچورٹی یا ایک سیاسی نقطہ نظر نہیں ہے؟ اگر یہ واقعہ ان کے لیے ایک عام واقعہ ہے جو کہ ہوتا ہے اور ہوا ہے، اس پہ اس قسم کی بشمول آپ کے پریزائڈنگ آفیسر صاحبہ، بشمول آپ کے کہ جس میں آپ نے اس واقعے کو کنڈیم بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، اس کی سمبولک ویلیو بہت بڑی ہے. اگر لیڈر آف اپوزیشن آپ تھے نہیں ہاؤس میں، سینیٹر واؤڈا نے اس کو کنڈیم کیا. میں معذرت کرتا ہوں. جی میں معذرت کرتا ہوں. سارے ممبرز نے کیا، اور یہ جب آپ کی پیشکش سب ختم کر دیں یہ بات ہوگی. جی بات ختم ہو گئی. جی بات ختم ہو گئی. کر لی ہے. جی ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ جو منیمم ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ سے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جس میں کہ انسانی حقوق، کسی کی رسپیکٹ، کسی کی ڈگنیٹی یا کسی کی جان و مال پہ اگر اٹیک ہو، تو اگر ہم خاموش رہیں گے تو پھر ہمارے اس ایوان کی جو حیثیت ہے اس میں کبھی بھی نہ رسپیکٹ آئے گی، نہ اس کی لیجیٹیمیسی ہوگی، نہ اس کی کریڈیبلٹی ہوگی. اگر ایسا ہوا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ بھی میں چاہوں گا کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی باقاعدہ مجھے لا منسٹر نے ایک بریف سوری جی ہاؤس آرڈر میں کیجئے پلیز. اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیے. سیریس ڈیبیٹ میں تھینک یو ویری مچ. جی اگر پلیز کنٹینیو. اس واقعے کی پوری تحقیقات 24 گھنٹے میں، کیونکہ جو مجھے پتا چلا ہے کہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی آ گئی ہے اور اپیرنٹلی وہ لگتا ہے کہ کوئی خواجہ سرا تھے، لیکن ان خواجہ سراؤں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور جرنلسٹ تھے اس پہ بھی اٹیک کیا تھا. تو یہ اتفاقاً نہیں ہے. ہمیں اس کی انکوائری اور اس پہ ان کو گرفتار کرنا، ان لوگوں کو جو اس زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں، ہمیں 24 گھنٹے کے اندر ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر حکومت ہے، چاہے وہ کٹھ پتلی صحیح،
चाहे वो फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत सही, लेकिन उनको ये रिपोर्ट देनी होगी कल के सेशन में, और पूरा वाकया इंटीरियर मिनिस्टर आए और वो बताएं कि क्या हुआ, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या थी। इस सारी ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्शन दें इस मामले में कि हमें इसको हाउस को आगाह किया जाए इसके सारे सियाक व सबाक से। दूसरी बात, मुझे अफसोस है कि हमारे जो ईरान के सदर हैं उनको ये शहादत हुई है और उनके साथियों की। हम ईरानी हुकूमत, ईरानी अवाम के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने एक आला जन्नत में आला मकाम दे। सेकेंडली, जो बिश्केक में हमारे नौजवानों के साथ जो सलूक हुआ, जो उनके साथ तशद्दुद हुआ, जिस तरह के उनको मारा गया, पीटा गया और भी कई किस्म की खबरें हैं, हुकूमत पाकिस्तान was conspicuous by its absence. फॉरेन ऑफिस और बाकी दीगर वज़रा जो कि सिर्फ रिसीव करने के लिए गए, अपने फोटो सेशन किए और बात खत्म हो गई। हम चाहते हैं जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मैं उनको सलाम करता हूं, उन्होंने फौरी पाकिस्तानी एम्बेसडर टू किर्गिस्तान से बात की, उन्होंने वहां पे उनको ये ऑफर दी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कि इतने वसाइल नहीं रखती, उसके बावजूद हमने कहा कि हमने अपने नौजवान तालिब इल्मों को सेफली इवैक्यूएट करना है, और उन्होंने ये खर्चा खुद उठाया और अब 600 से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स वापस भी आ गए हैं और मजीद भी आ रहे हैं, जिसकी कि तमाम खर्चा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे रही है। इसके बाद हम आते हैं जो अभी हमारे कॉलीग सेनेटर फैसल वाडा ने एक मुफस्सल तकरीर की, जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पे जुडिशरी के बारे में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हद बनाया है, मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ उनकी जात से ताल्लुक रखती थी और कुछ उन्होंने सियासी जमातों के लीडरों के साथ जो भी हुआ। मुझे खुशी होती अगर सेनेटर फैसल वाडा इसी रवानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, आया हम 40 साल बाद ये देखेंगे कि खान साहब का जो केस था वो एक ट्रेवेस्टी थी, वो एक जुडिशल एक ऐसा जुडिशल हमला था जो कि एक मुल्क के सबसे मकबूल लीडर पे, जिस पे के सियासी बुनियादों पे केस बनाए गए, हर किस्म के केस बनाए गए, लेकिन जिस पे मैं सख्त शर्मिंदा हूं और मेरा ख्याल है कि हम सबको भी होना चाहिए, वो केस था जिसमें के खान साहब की शादी को मुतनाज़ा बनाया गया। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा केस आपने सुना है? एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर, एक वो लीडर जो कि इस मुल्क के लिए हमेशा ग्लोरी लाया, उसने इस मुल्क का नाम हमेशा ऊंचा किया, और आप उसकी शादी को, मकसद क्या था? मकसद था तज़हीक करना, उस पॉपुलर लीडर की तज़हीक करना जिनको कि सियासी तौर पे, देखें हम यहां सियासत कर रहे हैं, हमारी जिस तरह के सेनेटर फैसल ने कहा कि हमारी जाती दुश्मनियां नहीं है, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लड़ाई चाहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो मेरे बाएं हाथ पे जो ट्रेजरी बेंचेस के जो सेनेटर्स बैठे हुए हैं, जो कि अपनी अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने सियासत से जाती दुश्मनी बना दी है। जो केसेस नहीं भी जहन में आता था, बल्कि आज मैं अदालत में था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे एक केस जो कि 1 साल पहले डिसाइड हो चुका था
टेरियन का केस, वो केस दोबारा फिक्स कर दिया गया। जब जजेस ने देखा, 3 बेंच का जज थे, उन्होंने जब देखा कि ये वही केस है जिसके बारे में ऑलरेडी जजेस ने फैसला कर दिया है, 3 बेंच में 2 जजेस ने साइन करके अपनी पूरी जजमेंट दी है, जो कि रिकॉर्ड में उन्होंने दिखाई, तो जो मौसूफ वकील थे वो उन्होंने कहा जी मुझे तो इसका पता ही नहीं था, तो अदालत ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया। अब आर वी रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस? कौन सा केस है जो और मजीद बन सकता है? तोशा खाना का केस है, आपने एक एक करके, और जब भी देखते हैं कि जमानतें हो रही हैं, रिहाई हो रही है, तो उसमें आप एक और केस डाल देते हैं। अभी तोशा खाना का एक नया केस भी वो हो गया है, ठीक है। ये केसेस बनाना इस किस्म के तरीके से, जिस तरह के खान साहब को सजा हुई, जो 3 दिनों में 3 सजाएं हुई, इस जैसी एफिशिएंसी हमने नहीं देखी, इस जैसी एफिशिएंसी हमने नहीं देखी। और मैं चाहता कि सेनेटर फैसल वाडा उसका भी जिक्र करते। बात यह है कि जिस तरीके से हमारे केसेस को, जब जमानतों की बात आती है तो उसको इनडेफिनेटली डिले किया जाता है, कभी जज नहीं आता, कभी वो छुट्टी पे चला गया है, कभी क्या हो जाता है। आपने देखा कि वो जज जो कि बीमार था उसको जबरदस्ती बिठाया गया कि तुमने ये फैसला भी देना है और तुमने ये सुनना है रात 2 बजे तक। अब हमारे जो वकील हैं, सॉरी वजीर हैं कानून के, मैं उतनी वकालत तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि आप ऐसी चीजें जो कि गलत हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, उसको डिफेंड नहीं करें। आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आ जाती है। आपको चाहिए कि जो ठीक है उसको ठीक कहें और जो गलत है वो गलत कहें। लेकिन आपकी तकरीरी में हमने सुना कि बजाय 3 बेंचे 5 बेंचेस का जो डिसीजन होता है उस पे 3 बंदे बैठ गए। अब देखें, जब ये हुकूमत इस तरह की इंसिनुएशंस करती है, उससे क्या होता है कि आप सही बात को नहीं मान रहे। आया ये दुरुस्त है कि नहीं है कि जो रिजर्व सीट्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बांट दी गई। जैसे कि वालिद मेरा वफात हुआ और कहें कि जी ये तो चूंकि नाखल्फ था इसलिए इनमें बांट दें। ये कहां का कानून है? ये कहां का इंसाफ है? आपने हमारी सीट्स। सेनेटर शिबली फराज वाक़े पर हुकूमत से जवाब तलबी के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अहम खबर से आपको आगाह करें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा गया, रऊफ हसन को निजी टीवी के दफ्तर के बाहर ब्लेड मारा गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सराव ने चेहरे पर ब्लेड मारा। शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। ख्वाजा सराव ने यह काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान पुलिस की जानिब से यह बयान सामने आया। मजीद जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान मुगल, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इब्तदाई बयान जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 4 ख्वाजा सरा थे जो हमलावर हुए हैं रऊफ हसन पर, और एक ख्वाजा सरा ने उनके चेहरे के ऊपर ब्लेड मारा है, जबकि उनके ऊपर थप्पड़ भी मारे गए हैं।